डा 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 डी डी डा डा। आज के ज़माने में जहाँ ट्रोलिंग होता है, जहाँ पे अंडे मारे जाते हैं, तो हम तो कॉलेज से रेडी है उसके लिए, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज के नए लोगों को ना बुरा लगता है, किसी ने बोला तो कि ये नहीं अच्छा है करके, दिल को लग जाता है, दिल को लग जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको दिल पत्थर बन चुका था हमारा। आज भी कोई बड़ा सीन अगर मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो रात को नींद नहीं आती, शोर नहीं होता, उस दिन भगवान को पाँव पकड़ के जाता हूँ, आज का दिन बचा ले भाई करके। ये होता है फिल्म मेकिंग, ये ऐसा क्राफ्ट है, ऐसा आर्ट है ना, जो आपको हर दिन कुछ नई बात सिखाता है। आई रिमेम्बर वॉचिंग न्यूड। ये सब लोग जो साउंड का ग्लिच दे रहे हैं ना, सब लोग एक ऐसा मस्त दे रहे हैं ना, मजा आ रहा है। वन मोर थिंग, आणि आप वगैरे नको म्हणू से यार, व्हाट इज दिस वी आर हियर डूइंग, टाळ्या वगैरे वाजवत आहे, हा एकदम आप तो असं पाहिजे का तुला, इनिशिएटिव्ह पाहिजे का, हा बरं काय मग काय तर पाहिजे का तुला, तू चालू केलंस तर बरं नाही होणार का? रवी, रवी, हाय हाय हाय, काय म्हणते, कशी आहेस? मस्त मस्त, हाऊ आर यू, काय म्हणते? व्हेरी वेल. काय करतोयस? अगं ते पोस्टर एक ती नवी फिल्म प्रोड्यूस केली होती रेखा नावाची. तू अजून डिझाईन करतोस? हा, प्रत्येक पोस्टर अजूनही कुठच्याही फिल्मचं मला आवडतं, खूप मजा येते. रिअली? अगं यार, डू यू हॅव द बँडविड्थ टू डू सो मच? अगं पोस्टर करणं फर्स्ट लव आहे, त्यामुळे कोणत्या फिल्मचं पोस्टर पहिलं केलं की मला कळतं फिल्मची कलर स्कीम काय असेल, त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल त्याच्या डीआय टोन काय असेल वगैरे. ओसीडी आहेच ना? येस येस, ते तो जात नाही, तर ते ऑलवेज आवडतं करायला. हे काही असं पुढच्या फेस्टिवलचं काही त्यांचं पोस्टर करून ठेवतोय, तर ते थोडी मजा येईल करायला. कुठे बसूया बाहेर, चला गप्पा मारूया. येस येस, कम 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 कम. नाईस सनलाईट. हा सेटअप लावून झालाय तुमचा सगळा मस्तपैकी यार. अरे नाईस. टीम इज ऑल लाईक. बस बस, काय म्हणते, कशी आहेस बाकी? बस यार, तू सुना, हाऊज लाईफ? कडकड मस्त. Welcome to Creative Talkative with Ketki Tiwari. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this. There's no topping this. Time to explain what's in our veins, what's in our minds. Take a peek into these lives. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this. There's no topping this. We can't contain our excitement as we meet Ravi Jadhav, who is a leading director, actor, screenwriter, producer, and one of the most influential filmmakers in the Marathi film industry. Having made his directorial debut with the award-winning film Natrang, Ravi has won several accolades for his contribution to Marathi cinema by creating path-breaking films like Bal Gandharva, Balak Palak, and Time Pass, among others. He has won the maximum number of national awards any filmmaker has ever won, and his films have been screened all over the world. Never shying away from making bold cinema, his controversial film Nude, which is based on the life of nude models in fine arts, made quite an impact by venturing into unconventional and forbidden zones. Join in on a super fabulous chat with this iconic filmmaker as he shares his magnificent journey in an absolute casual and candid way, just like he is. रेडी तू शूट करता? Yeah. So tell me this, Ravi. You're churning out one thing after another, after another, after another. इतना सारा काम, मतलब you are working at the speed of light. See, fortunately, I'm getting this kind of opportunity after lockdown. After lockdown, when I was thinking of doing Marathi films, surprisingly, I've got some very interesting Hindi assignments. First, I got Chidiya Ud, which for MX basically. Amazing story of a girl coming from Rajasthan and become prostitute in Mumbai. And she want to become a queen of that particular area. So I think it's very unusual because lots of people, you know, डर जाते हैं कि ऐसा कुछ सुन के, but वो डरती नहीं. उसको लगता है कि मैं यहाँ की रानी बनूंगी. बोला wow, nice. And it's about child trafficking, women trafficking, talking about lots of various subjects also. It was very challenging. And I wanted to work with Jackie Shroff for a long time.
Okay. When I heard that Jackie is working on this particular web series, I say I want to work with him because जब हम छोटे थे हम जब डोंबिवली में रहते थे जब VCR आता था तो VCR में राम लखन हीरो ये फिल्म हमने रास्ते पे बैठ के ऐसे VCR लगा के हमने सबने देखी है। तो उस पर्सनैलिटी के साथ काम करने की मैं भी खुद की बहुत इच्छा थी। I got opportunity to work with Susmita. When I met her and when I heard about her story, she was also like us, you know, coming from typical middle class family, you know, and जाके Miss Universe बन गई, surprise, and but she carry herself, you know, throughout, and so Tali, the another web series which I just finished shooting, it was about Gauri Sawant, a transgender activist who fought for the 377 Act, and so it was again a great opportunity. So I grabbed that opportunity and I shot that. It was a great experience. And now I'm working with Pankaj Tripathi. Again, one of my favorite actor of current time, and Pankaj playing Atal Bihari Vajpayee. This kind of opportunities एक के पीछे एक आती गई, and मुझे लगा कि शायद जो मैंने मराठी में काम किया था पहले नटरंग से लेके बाल गंधर्व से, आई थिंक शायद वो देखने के बाद लोगों ने शायद ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो उसकी धुरा मेरे हाथ में दे दी। Getting an opportunity is the beginning. Okay, making gold of that opportunity. You know, you make everything look so simple. मतलब, and I know the kind of effort, the kind of hard work that goes behind everything, right? We are all a part of the industry, we know. So जब मैं देखती हूँ कि आप इतने सारे films भी कर रहे हो, अभी OTT भी कर रहे हो, but first and foremost, whenever I meet you, you always have this amazing smile on your face. And secondly, you make it look so simple. मतलब हाँ मैंने कर दिया. So that again is a quality which is very inspiring. So a lot of people, after seeing the kind of success, after having a great journey, have this habit of glorifying themselves and leaving people behind. But you have taken everyone along with you. So I think that is a phenomenal goal. Speaking about Tali, what I want to ask you when I saw the first look is that किसको ज़्यादा मुश्किल था convince करना, Sushmita Sen to play Gauri Sawant, or was it difficult to convince Gauri Sawant that Sushmita will be playing your character? I think they both understand the value of this particular topic. Both. Actually, it was more difficult to Sushmita to play a transgender. Of course. Very frankly, because I am sure there will be lots of actors will be ready to do this kind of role in today's scenario when everybody looking for a great character to play. So I think it's a great time for Sushmita to basically accept this challenge, because it's not easy. Till today we know her as a face of India, a beautiful face of India, you know. And she's playing a transgender with mustaches, with a beard. Phenomenal. It's not easy. It's not easy. And she believe in this subject. Hats off to someone like Sushmita, because when you represent beauty in that sense, and then to take this kind of a risk and play a transgender is something that requires a lot of guts. Which was the first feature film that you saw ever? Oh my God. Actually, I used to saw lots of film with my father when I used to stay at Worli. So हमारी एक स्कूटर है जो मेरे घर पे है. मैं पिताजी माँ और मेरे 2 भाई और 1 बहन है, तो हम लोग 4 बच्चे और फादर और मदर, हम लोग 6 जन इस स्कूटर पे बैठते थे चेतक पे. 1978 की चेतक है, उसमें हम 6 जन बैठ के हम लोग वहाँ से जाते थे प्लाजा में. 6 जन? हाँ, तो आगे की जगह जो मेरी है, सिस्टर माँ और पिताजी के बीच में, और पीछे जो स्टेपनी उसमें 2 भाई बैठते थे. एंड हम लोग 6 जन वहाँ प्लाजा में थिएटर में मूवी देखते थे. वहाँ उस टाइम मुझे याद है हम लोग, माई फादर वॉज अ बिग फैन ऑफ दादा कुंड के, उनकी काफ़ी फिल्में हम देखते थे. देन मुझे जो याद है, मेरे जो याद में वो एक मराठी फिल्म थी हा खेळ सावल्यांचा. इट वॉज अ हॉरर फिल्म दोस टाइम. तो बाद में आई थिंक उस दिन से मैं बहुत डरने लगा. आज भी मैं अकेला घर पे सोता नहीं, और आज भी मैं जो होटल में जाता हूँ तो लाइट लगा के सोता हूँ. व्हेन आई शिफ्टेड टू डोंबिवली, देन ये सब नया युग आ गया जहाँ पे जैकी दा, अनिल कपूर, देन मिथुन चक्रवर्ती, उनकी फिल्में. और मुझे जब लोग देखते हैं कि when they saw my film नटरंग and they know they like the music of नटरंग and बाल गंधर्व, और मुझे जब पूछा जाता है कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते थे, तो मैं बोलता था मैं बप्पी लहरी की मिथुन चक्रवर्ती गाने बहुत सुनता था, और मैं गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन था. पहली जब फिल्म देखी तो at that time, I know it's like really way back, did you think that मुझे भी ऐसा कुछ करना है? नेवर ना. तो जिंदगी कभी मालूम ही नहीं था.
मुझे लाइक आई यूज्ड टू डू थिएटर, बट इट्स हौशी थिएटर बोलते हैं मराठी में उसका, मैच्योर थिएटर। तो वो थिएटर में करता था, वो भी मैं गांव में छोटे मोटे नाटक में काम करता था। बस उतना ही मेरा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो रिलेशन था उतना ही था। लेट्स मूव टू जे जे मध्ये 5 वर्ष, यू नो, वी वर ऑल पुट थ्रू दैट रिगरस ट्रेनिंग. सो इफ आई वर टू आस्क यू कि जे में से वो 5 साल जो जे में हमने बिताए, तो ऐसी एक या दो चीज़ें जो सीखी? काफ़ी एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, lots of people appreciate my film's look. Yes. Everybody appreciate look of Natarang, look of Bal Gandharva, or even Balak Palak Time Pass. It's all come from JJ, because all these color schemes, all these compositions, all these ideas. For example, whenever we do any films, what comes first is the idea. Correct. And is story. For the film is story. Yeah. And I always took a lots of time to think about that one idea, one story on which I'll invest my 1 year, minimum 1 year. So all this comes from JJ actually. So then after JJ, of course, advertising happened. So was advertising a means to get into films, or even at that point you didn't know that you at some point, you know, up film making karoge? No, advertising I choose commercial art because my father told me you have to earn very fast. Yeah. अदरवाइज मुझे फाइन आर्ट में मिलता था, मैं फाइन आर्ट में एडमिशन लेता था. करेक्ट. बट उस टाइम मिथ ऐसी थी कि बेसिकली अप्लाइड आर्ट में यू विल गेट अ जॉब अर्लियर एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी अर्लियर. दैट्स व्हाई आई चूज अप्लाइड आर्ट. मेरे आई डोंट थिंक मुझे इतनी अक्ल थी व्हेन आई जॉइन जेजे की एक्चुअली आर्ट क्या होता है, कंपोजिशंस क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम. किसी को भी, हमको किसी मुझे को इतना ही मालूम था कि बेसिकली इफ यू जॉइन दिस कॉलेज, दिस इज गुड कॉलेज एंड यू विल डू समथिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड यू विल अर्न मनी वेरी फास्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ जितना आप एक्सपीरियंस आपको जितना मिलेगा, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस फील्ड में, वो फील्ड आपको ज़्यादा देते जाता है. इट स्टार्ट गिविंग यू समथिंग. You have to keep practicing. You have to keep practicing to understand the craft of that particular art form. We know advertising is an on-the-job training. Correct. Every day you're learning. Every shoot you grow every day. Every day you're growing. So, how did that help you when you started, you know, making films? See, Z was one of the account of FCB, and I used to handle Z. And me and my team we used to meet Z people, and you know they brief us on different various TV serials, their shows. This is how I start understanding the entertainment industry, I can say. And that's the same era, 2005 or 2006. There's a Marathi film called Shwas, which was selected for Oscar, and I was doing campaign for Z. So in this I attend 1 or 2 parties, 1 or 2 their reality shows, and I come to know this is very interesting. This is very nice. And my father used to, used to ask me every time कि तेरा नाम कब आएगा, because you know कि in advertising we believe in teamwork. तो individual नाम कभी आता नहीं, तो is always FCB का टीम. तो मैं whenever I go to मैं जब फादर को बोलता था कि मुझे ये अवार्ड मिला, दिखा तेरा नाम दिखा, तो नाम आता था FCB का टीम. तो फादर मुझे पूछते थे तेरा नाम कब आएगा, तेरा नाम कब आएगा. तो बोला ये मेरा नाम तब आएगा जब मेरा नंबर आएगा, तो वो नंबर आने के लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा. सो मैं सोचता था कि ये कैसे, तो मैं आई यूज्ड टू अटेंड दिस जी गो एंड ऑल दिस इवेंट ना, तो उनको उस नाम से अवार्ड मिलता था, इंडिविजुअल नाम से. तो मुझे लगा दिस इज इंटरेस्टिंग यार. सो इट वाज स्टार्टेड, द फिल्म मेकिंग स्टार्टेड टू मेक माय फादर प्राउड. दैट्स व्हाई आई कंसीव Natarang, which is I start writing in 2007. Okay. In FCB only. I start writing 2007. I got that book called Natarang. So I start writing 2008. I asked my boss, I have to go. He said no. So I think within 6 months I resigned 3 times. So I left in 2008 FCB. 2008, 2009 I was doing pre-production. 2009 second half we start shooting, and 2010 Natarang was released. So tell me this, Ravi, critical acclaim, okay, awards, plus box office success. Sagrans bagitlay. You know, there is nothing that you have not seen. Is one thing more dear to you than the other? First film is always, Natarang was very dear because it was a struggling time. As a first time director, you know, getting a financer, getting a producer, talking with people, and everybody look at you, yeah, you are newcomer, you know. Everybody till now talking about Natarang that it was a game changer film in Marathi.
because that was all come from advertising experience. Yeah. The look and feel, the music, Yeah. the importance of music, the characterization, the shift of characterization, the different characters persona, all these things come from advertising actually. And it was very close film to me. Success, अगर मुझे critical acclaim success मिला and लोगों ने बोला कि रवि यादव is a good director, I am very happy. If I am getting box office, but if I am getting box office and people say बहुत गंदा काम किया लेकिन पिक्चर चली, I am not happy about it. The kind of films that you have made, okay, your topics are really bold, okay. Not only that, your subjects are experimental, and they also manage to bring about a change in the society or have an impact in the society. Now, this balance is very, very difficult. See, by nature, I love humor. मेरा नेचर बहुत सीरियस नेचर नहीं है, बट मैंने जो पहली फिल्म की नाटक ना बहुत सीरियस फिल्म थी, बिकॉज मुझे आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर फोक आर्ट. आई वांटेड टू डू, मुझे करना था फोक आर्ट के लिए, तमाशे के लिए कुछ करना था. मैं बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि द आर्ट फॉर्म इज डाइंग नाउ, यू नो, न्यू जनरेशन इज नॉट वाचिंग तमाशा एंड ऑल. तो मुझे वो करना था, बट नाटक करने के बाद लोगों को लगा कि ये बहुत सीरियस डायरेक्टर, इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर है. तो मैंने बाल गंधर्व जो किया तो वो भी थोड़ा सीरियस फिल्म था, यू नो. तो जो मेरा रियल नेचर था उसके मैंने बालक पालक की. देर आई कम टू माई रियल, यू नो, लाइकिंग वॉज टाइम पास. मैं वैसा ही हूँ बेसिकली, दैट इज टाइम पास. व्हेन आई डू अ सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म, आई रियली फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट वांट टू, यू नो, talk about that subject. You know, I really think that it's a need to talk about this subject. So I do that. I would like to say that, you know, you're a very greedy, creative person, but that has worked in our favor. Yeah. And, you know, we have really enjoyed every single piece of work that has come out. My question to you is ki, in both the characters that you had, okay, were for the love of the craft म्हणा किंवा love of you know, theater म्हणा, you know, they are people who have dedicated their life, okay, but at the same time you signed on iconic people. You had Atul Kulkarni and you had Subodh Bhave. तर त्यांना कसं कन्व्हिन्स केलं to wear a sari or to play someone who is, you know, cross dressing? How did you convince यार? अतुल ने देखा, अतुल ने बोला yes, it's a very challenging role, and then he decided कि I will, you know, transform myself. मैं बॉडी बनाऊंगा एंड वो पूरा ऑफिस कम करूंगा, ऑल दिस थिंग, एंड वी प्लान शूट दैट वे. मुझे ऐसे एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो श्योर नहीं होते, लाइक अतुल एंड तक वो श्योर नहीं होता, वो मेहनत करते रहता है, वो तब तक वो परफेक्शन इसको नहीं मिलता. इवन सुबोध, इतने वर्कशॉप किए हमने बाल गंधर्व के लिए, इतना सब कुछ किया, लेकिन सुबोध ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको फाइनली वो बाल गंधर्व मिले जब वो पहली बार मेकअप करके पहला शॉट देने आ रहा था चल के, तब उसको फाइनली वो रियलाइज हुआ कि हाँ अब मैं हूँ. तो ये बहुत अच्छा होता है जब कोई आर्टिस्ट या कोई डायरेक्टर श्योर नहीं होता. मैं खुद कभी श्योर नहीं होता मेरे काम के बारे में. मुझे अभी भी जब मैं कोई शूट करता हूँ लगता है कि पहली फिल्म कर रहा हूँ, टेंशन आता है, रात को सोता नहीं मैं. नेक्स्ट दिन कोई क्रिटिकल सीन होगा, No one is going to believe that. रियल अरे नहीं आती नींद, मैं सच्ची बोलता हूँ, नहीं आती नींद. यू नो, आज 13 शूट है, मुझे रात को नींद नहीं आई. कोई बड़ा सीन अगर मैं शूट कर रहा हूँ ना तो रात को नींद नहीं आती, श्योर नहीं होता. उस दिन भगवान को पाँव पे पड़ के जाता हूँ, आज का दिन बचा ले भाई करके. ये होता है फिल्म मेकिंग. ये ऐसा क्राफ्ट है, ऐसा आर्ट है ना जो आपको हर दिन कुछ नई बात सिखाता है, हर दिन कुछ नए चैलेंज आ ही जाते हैं. आप कितना भी प्लान करो, उस दिन सुबह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही है. आपका जनरेटर बंद होगा, या आपका कलर जो वॉल को दिया है आर्ट डायरेक्टर ने वो सूखा नहीं है, न्यू चैलेंज, तो चलो एंगल चेंज करो, ये सोचा था लेकिन अभी सूख नहीं रहे, क्या करूँ, यहाँ कैमरा लेके जाओ, ये सब करना पड़ता है. एंड तब जाके एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि आज का दिन अच्छा गया. वाओ, हम सोते हैं और भी छुट्टे, लेकिन कल का क्या. Another favorite of mine is Balak Palak. As parents, we face that, you know. Yeah. मुलांना हे शिक्षण गरजेचं आहे, but how do we give it in the right way? Yeah. But you handled it beautifully. Yeah. So how much of you as a father you brought yourself, you know, on the set? देख, फादर तो था, और मेरा तो आई थिंक मुझे बड़ा बेटा अथर्व मतलब 13 ईयर का हुआ था, 13-14 ईयर. उसके साथ एक बेसिक डिस्कशन शुरू हुआ था अगर अबाउट दिस टॉपिक्स, यू नो. तो बेसिकली इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाए. एंड मुझे लगता है आजकल 2022 में मैंने देखा कि OTT पे इस सब्जेक्ट पे काफ़ी काम हो रहा है. मैंने 2012 में किया था शूटिंग. Right, absolutely. एंड बट ब्यूटी इसकी ये थी कि पूरे फिल्म में सेक्स नाम का वर्ड नहीं आता. It's all like metaphoric. So Atharv saw Balak Palak. So I really it loved was it. easy, na, to have your dad as a director helps. कि चलो ये conversation नहीं हुआ तो एक फिल्म बना देते हैं, वो देख लेगा और वो समझ जाएगा. Yeah.
when I first saw Nude in the theater, the guts to have come up with something like this, you know, okay, nahi, I will show it, and I will show it so artistically. But again, it was such a niche topic, you know. But for you to have brought it out, you know, it requires guts. क्या होता है ना कि न्यूड जैसी फिल्म जो है ना, वो बनाने के लिए आपको ना एक जर्नी करनी पड़ेगी पहले. अगर नटवर्क सक्सेसफुल नहीं होता, अगर बाल गंधर्व सक्सेसफुल नहीं होता, अगर टाइम पास को सक्सेस नहीं मिलता, तो शायद मैं न्यूड नहीं कर पाता. राइट. न्यूड एज अ फर्स्ट फिल्म कोई भी मुझे फाइनेंस नहीं करता, बट एक सक्सेस रेशियो साथ में था, एक लोगों का बिलीव था ये जो भी करेगा अच्छा करेगा एंड वल्गर नहीं करेगा. ये बिलीव था, इसलिए मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले उस फिल्म के लिए. एंड वो लोगों के नज़रिए के बारे में बात करनी थी, इसलिए न्यूड फिल्म की गई कि नज़रिया अगर आपका बदला तो क्या हो सकता है. पर न्यूड ने एक कहा कि ये आदमी एक डिफिकल्ट टॉपिक बहुत इजीली हैंडल कर सकता है. तो वहाँ जाके एक जो हिंदी के बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्हें चाहा कि इसके साथ काम करना चाहिए. तो कहाँ तो जाके अल्टीमेटली वो सर्कल कंप्लीट होता है. So many awards you have won, okay, but I was just noticing इकडे काहीच दिसत नाहीये जास्त. Anybody else would have displayed all their accolades. How come? No, मैं रखता ही नहीं. अभी जो कुछ है ना, ये भी रखे हैं, वो ऑल रिसेंट है. ये शायद लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में. I know that if you put your awards, ये सगळं भरून जाणार आहे. म्हणजे you have so many. मैं सामने रखता नहीं, बिकॉज ना वो एक प्रेशर पॉइंट आ जाता है कि लाइक नेशनल अवार्ड भी मेरे पास एक भी नहीं रखा है. नॉट अ सिंगल नेशनल अवार्ड ऑन डिस्प्ले. कुछ भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो अच्छा ये अवार्ड तो और 2 आने चाहिए घर पे, और 2 आने चाहिए. रखेंगे नहीं, लेकिन आने चाहिए. हाँ, लेकिन जिंदगी में ऐसा, ये जिंदगी में ना ये थॉट ही नहीं आना चाहिए. Another film that took me aback, because honestly with Kacha Limbu, okay, I think everyone has seen it, and we were shocked, and what you have done to that character. Oh, thank you. That all credit goes to my director Prasad Oak actually. So I give complete credit to him कि उसने वो काम करके लिया मेरे से. मेरा नेचर बिल्कुल सीरियस नहीं है, यू नो, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले तो मैं जरूर करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा करने के लिए. आई टुक लॉट्स ऑफ टाइम टू डिसाइड कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है कि ये प्रोजेक्ट करना है. वो सबसे खतरनाक प्रोसेस मेरे लिए वो होता है. मराठीचं कॉन्टेंट म्हणजे सॉलिड आहे आणि सगळ्यांना ते माहिती आहे. तर 2-3 प्रश्न आहेत माझे. एक तर why is it that there is this, you know, load that Marathi cinema is carrying, that we have to make, you know, socially impactful films. Films need to have a message. आणि ऑटोमॅटिकली मराठी फिल्म्स म्हटलं की एक सेन्सिबिलिटी, एक लुक. आय एम अ बिग फॅन ऑफ मराठी थिएटर, बिग फॅन ऑफ मराठी सिनेमा. मी अजूनपर्यंत असं काही बघितलं नाही की वेस्ट झालेत 2 तास. ठीक आहे, वॉट एव्हर यू वॉच, इट्स ऑलवेज यू टाइम वेल स्पेंड. पण स्टील मला असं वाटतं की मराठी इंडस्ट्री हॅज नॉट गॉट दॅट, आपण म्हणतो ना, ते स्टेचर नाही मिळालंय. आज आपण OTT वरती बघतो, देर आर हिंदी फिल्म्स अँड देन देर आर लॉट ऑफ साऊथ इंडियन फिल्म्स. ओके, आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट द साऊथ इंडस्ट्री, बट आय एम सेइंग की आय वुड लाईक टू सी मराठी फिल्म्स देयर. का असं होतं मला सांग, आणि का एवढं दडपण की नाही आपल्याला हा कॉन्टेंट, वी हॅव टू डू इट. नाही, दडपण नसतं अजिबात. ते तू खरं सांगतो का, आम्ही इतके, मी खूप नशीबवान आहे की मी मराठी इंडस्ट्रीत काम करतो. याला 2-3 गोष्टी कारणीभूत आहेत. पहिलं, मराठीमधलं ज्या कथा कादंबऱ्या जे मराठीमध्ये आहेत, जे नॉवेल्स आहेत मराठीमध्ये, ते इतकं अमेझिंग लिटरेचर मराठीमध्ये आहे ना, जे खूप कमी भाषांमध्ये अवेलेबल आहे. दुसरं, मराठी रंगभूमी, मराठी थिएटर हे इतकं श्रीमंत आहे, त्याच्यामध्ये इतके अमेझिंग एक्सपेरिमेंट केले जातात ना, जे खूप कमी भाषांमध्ये म्हणजे भारतामध्ये होतात. त्यामुळे होतं काय, मराठी जो ऑडियन्स आहे ना, तो माझ्या मते सर्वात हुशार ऑडियन्स आहे. कारण तो उत्तम पुस्तकं वाचतो, तो चांगली नाटकं पाहतो. तर त्याचा एक जो माइंडसेट जो असतो बघण्याचा, तो असा माइंडसेट की मला ह्या चित्रपटामधून मला काहीतरी असं बघायला मिळू दे जे माझ्या आयुष्याच्या जवळचं असेल. आणि अशाच गोष्टी जास्त मराठी लोकांना भावतात. त्यामुळे मराठी दिग्दर्शकांचा जो कल असतो, जो असा असतो, नॉर्मली चांगल्या साहित्यावर सिनेमा करावा, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या लहान लहान गोष्टी ज्या लोकांसाठी खूप मोठ्या असतात त्यांच्यावर चित्रपट करावा, हा पहिला कल असतो. पण त्याच्यामध्ये थोडंफार एंटरटेनमेंटसाठी काही गाणी बिणी असली तर असतील, पण मुळात जे अपब्रिंगिंग आहे मराठी दिग्दर्शकांचं, ते अपब्रिंगिंग हे थिएटरमधनं, उत्तम कादंबऱ्यांमधनं, उत्तम वाचून झालेलं आहे. त्यामुळे उत्तम वाचन, उत्तम पाहणं ही सवय मराठी माणसाला. हळूहळू काय व्हायला लागलं, पिढी बदलली. हल्लीची मुलं पुस्तकं वाचत नाहीत. करेक्ट. हल्लीची मुलं नाटक जास्त पाहत नाहीत. राईट. ते काय पाहतात, तर हिंदी चित्रपट पाहतात. हल्ली साऊथचे सिनेमे ते बघतात. मग त्यांना असं वाटतं की ह्याच्या पॅरललमध्ये मराठी सिनेमा कुठे कमी पडतो आहे का.
पण तुम्ही आता जे जगभरातल्या सर्वोत्तम फेस्टिवल्समध्ये जे उत्तम सिनेमे बघता ते आणि मराठी सिनेमांची कुठेतरी जातकुळ एक असं मला वाटतं. ते मराठी दिग्दर्शक करत राहणार. व्यावसायिक यश मिळो न मिळो हे सेकंडरी आहे, पण आपल्या मनातली एखादी कल्पना मारून फक्त व्यावसायिक यशाच्या मागे धावणं हा पिंड मला वाटतं मराठी दिग्दर्शकांचा नाही आहे. तू राईटली म्हणालेस की फक्त विषयच पाहिजेत का सिनेमामध्ये, व्यावसायिकता का नको. तर आता नव्या पिढीचे जे दिग्दर्शक आहेत ना त्यांचं असं हे आहे की आपण म्हणून विषय नाही सोडायचा, आपण विषयाला पकडून त्याच्यामध्ये कसं एंटरटेनमेंट येईल हे आपण करायचा प्रयत्न करू. ये अभी फ्यूचर अभी And you are laying such a beautiful trail for everybody with all the work that you're doing. No, lots of new fellows, lots of new directors, Marathi directors. Now they are doing fantastic work. Now they understand the value of the big screen, cinematic vision and all that. जे जे किस्से विचार तू जे हां मला सांग ना, तू ऍक्च्युली मला सांग. त्यावेळी अशा व्हेरी हायफाय रँगलर, ली एंड लिवाइस डेनिम आई थी. हम फाटके लोग डोंबिवली के, हमको क्या मालूम लिवाइस क्या होता है एंड क्या ली क्या होता है. एक बार मैंने बहुत डेयरिंग करके बांद्रा में एक ही शोरूम था तब लिवाइस का. तो मैं कॉलेज में था तो देखने को गया था महेश ली में, जो अभी बहुत बड़ा DOP है. हम गए तो उसका मैंने कॉस्ट देखा था उस जमाने में 1400. अभी का 10,000 हो गया पकड़ना. तो ऐसा लगा वो माय गॉड, इसमें तो मैं टेलर में जाके 300 रुपये में जीन्स लेती, 300 रुपये में कितना जीन्स स्टिच कर सकता हूँ, ये सोच के मैं पागल हो गया था. तो हमने मैं महेश हम लोग सब ना फाउंटेन में फाउंटेन में ना वो सब हाथगाड़ी नहीं इस पे सब जीन्स सेकेंड हैंड यूज जीन्स मिलती थी. 60 रुपीज़ में मिलती थी. 60 रुपीज़ में यूज रैंगलर फेड आउट, एकदम लाइक अमेजिंगली फेड आउट. और वो पहन के हम जो कॉलेज में आती ना तो यही पेडर रोड की लड़की हमको पूछी तो माय गॉड कहाँ से लिया, माय गॉड दिस ब्रांड सच नाइसली फेडेड एंड ऑल. तो हम बोलते थे हमारी आंटी US में रहती है वो भेजती है. तो ये आंटी हमको 3-3, 4-4 साल हमको आंटी ये भेजती रहती जीन्स की डेनिम. तो ये हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है. फैशन स्ट्रीट में हमने ऐसे भीख मांगी है ना, मतलब प्रियस टू गो 3 of us लाइक लिटरली वॉलेट खोल के दिया, देखो इतना ही पैसा है, 100 रुपया हमको घर भी जाना है, खाना भी खाना है, दे दो लिटरली. तो वैतागून शेवटी म्हणायचा ले जाओ, मेरा सर मत खाओ, लेके जाओ. जे के दिन बहुत कड़कड़ दिन थे. मैं कड़की के दिन बोलता हूँ उसको, बहुत कड़की थी. साला मिसल पाव के लिए एक मिसल पाव 3-3, 4 जन खाते थे. क्या कड़की मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कड़की होती थी उस टाइम. कहाँ वे कितना पैसे होते थे. वो जो आर्ट मटेरियल खरीदते थे उसके लिए भी पैसे नहीं थे. उधर भी एक उधारी चलता था, उधारी चलता सब जगह उधारी, पेंट दे दो, ब्रश दे सब दो, जगह उधारी. कैंटीन में उधारी, शॉप में दो उधारी, तभी जाके तो हम लोग बन गए ना लाइफ में. घर पे कौन है डायरेक्टर? मेरी वाइफ. बहुत साल मैं करियर में कॉलेज से अच्छी इंस्पायर मी अलॉट बेसिकली. एंड जो अदरवाइज मैं बोलता हूँ ना अगर मेगा लाईफ में नाही होती तो अभी भी डोंबिवली में होता. सो टेल मी, ऑन अँड ऑफ स्विच आहे कुठलं? म्हणजे आता मी काम करतोय, आता मी इट्स ऑफ, नाउ इट्स ऑन, यू हॅव अ स्विच लाईक दैट. सो व्हेन आई वर्किंग इट्स जस्ट 3 hours sleep. दैट्स अ पैटर्न फॉर 40-45 days, 50 days, 60 days. जब शूट खत्म होता है तब वो होता है ना एनाकोंडा, जब कैसा दिखता है आपको, सब मैं बेड पे ना 3-3 दिन सोता हूँ. मैं उठता ही नहीं है. डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो घर पे भी देखेगी बोले कितना लेजी आदमी है. जो तू सेट पे देखेगी ये आदमी आराम कब करेगा. तो दोनों होता है. हाँ, कंप्लीट. हाय हाउ आर यू? सॉरी टू डिस्टर्ब. मी पटकन जाऊन येऊ. हाँ जाऊन ये. किती वेळ देशील? 1 hour. लवकर. सी यू. बाय. लवकर. See, I love my family. So basically, I make sure कि there will be breaks between shoots. मुझे घर से 1-1 महीना, 2-2 महीना दूर रहने को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. I want that my home energy. मुझे अच्छा लगता है घर पे आऊँ, बच्चों को मिलूँ, वाइफ को मिलूँ, अच्छा लगता है. हाँ, then again वापस काम करूँ. Let us tell you what we wanna say, not about just getting paid or achieving fame. It's about the everyday blood, sweat and tears, dreams and fears, everything you gotta hear. Listen, from the first steps to the final leap, making headlines in history. How they did it, it's no mystery. Take a seat, honestly. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this, there's no topping this. Time for honesty with some novelty. Sit down with KT, you just hit the lottery. Hope you had as much fun listening as we did talking. Do subscribe for updates on our upcoming episode out every Friday. Like, share and follow us on YouTube, Facebook and Instagram as well as creativetalkative.com.
That's creative with a K.